हम लोग आगे चलते हैं. So let us check what we have done in the last term and then we will proceed. So this was the syllabus which we are going to cover in Unit 1. Definition and examples of ring, properties of ring, subring, integral domain, definition and examples of field, characteristic of ring, ideals, ideal generated by subset in a commutative ring with unity, factor ring, prime ideals, maximal ideals, homomorphism and isomorphism of rings, polynomial rings over commutative ring, and division algorithm and consequences, factorization of polynomials, reducibility test, irreducibility test, Einstein's criteria, unique factorization in ZX, and application of unique factorization to wired dice. ये mostly हम लोग गैलियन की बुक से करेंगे. And we have decided yesterday that we will have 3 tests of 15 marks. 2 best marks will be considered, so we will have 30 marks. 1 test of 5 marks, so total 35 marks, and mid sem 15 marks, so we have total 50 marks of internal evaluation. Okay, so let us recall जो हमने लास्ट टर्न पे किया था. सबसे पहले हम लोग ने ग्रुप डिफाइन किया था. ग्रुप डिफाइन करने के बाद हम लोग ने कॉम्यूटेटिव या एबिलियन ग्रुप डिफाइन किया. फिर उसके बाद कुछ ग्रुप्स के एग्जांपल देखे. फॉर एग्जांपल Z प्लस Q प्लस C प्लस R प्लस Zn प्लस set of n cross m matrices over Z with respect to addition. This is group. GLNR, SLNR, these are the examples of group. Then we define the ring. So what was ring? A non-empty set R together with 2 operations plus and dot such that R plus is a commutative group, dot is associative operation, and dot is distributive over plus. If these 3 things are satisfied, then we will say that R plus dot is a ring. Okay. And the examples of the rings are Z plus dot, Q plus dot, R plus dot, C plus dot, and Zn plus dot. These are the examples of ring. Then again m n cross n square matrices का set over the set of real numbers. ये भी हमारा क्या बनाता है? Yes. सर वहाँ पे जेडा का एग्जांपल है, वहाँ पे 20 बार इक्वल 2 बार कैसे हुआ? अच्छा 20 बार. ये जो एग्जांपल है इसमें Z6 लिया गया है. यहाँ पे क्या है? Z6 है और 20 जो है 6 से ऊपर है, तो हमको क्या करना है? 20 को 6 से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर 2 आएगा. ठीक. नाउ दिस इज सेट ऑफ n क्रॉस n मैट्रिसेस ओवर R. Set of n cross n matrices over Q with respect to addition and multiplication. Set of n cross n matrices over integers Z और set of n cross n matrices over C. ये सब क्या है? रिंग बना रही है एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में. इनफैक्ट अगर हम कोई R रिंग ले लें तो सेट ऑफ n cross n matrices over R बनाएंगे, तो ये भी with respect to matrix addition and multiplication of matrices will form a ring. ठीक. तो I hope you have verified these things. Now polynomials over Z. Polynomials over Z के ऊपर हम बना सकते हैं. Over Z polynomial कहने का मतलब कोफिशिएंट्स जो होंगे polynomial के वो Z से आएंगे. ठीक. इसी तरह से हम लोग रैशनल के ऊपर polynomial बना सकते हैं, रियल्स के ऊपर polynomial बना सकते हैं, उसको हम Rx से डिनोट करेंगे. रैशनल के ऊपर बनाएंगे तो Qx से डिनोट करेंगे, एंड कॉम्प्लेक्स के ऊपर polynomial बनाएंगे तो Cx से डिनोट करेंगे. ये सारे polynomials का सेट ring बनाता है with respect to addition and multiplication. So and now then we define the commutative ring. कॉम्यूटेटिव कब रिंग होती है? जब वो दूसरा जो ऑपरेशन है, डॉट का जो ऑपरेशन है, उसके रिस्पेक्ट में कॉम्यूटेटिव हो, यानी वो ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव हो, तो हम बोलेंगे रिंग कॉम्यूटेटिव. अच्छा, रिंग विथ आइडेंटिटी क्या होती है? रिंग विथ आइडेंटिटी को गैलियन की बुक में अगर आप देखिएगा तो उसमें यूनिटी लिखा हुआ है. इस आइडेंटिटी की जगह पे यूनिटी भी लिखा हुआ है. सो आप इसको रिंग विथ आइडेंटिटी या रिंग विथ यूनिटी बोल सकते हैं. आइडेंटिटी एलिमेंट को ये यूनिटी भी बोल रहा है. ठीक है. सो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या यूनिटी, इसको हम लोग 1 से डिनोट करते हैं यूजुअली, और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? a into 1 is equal to 1 into a is equal to a for all a in R. तो हम लोग 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या यूनिटी बोलते हैं और रिंग को रिंग विथ यूनिटी बोलते हैं.
ठीक, इसके बाद एक एग्जांपल हमने दिया, एस कोई नॉन एम्प्टी सेट ले लें और पावर सेट उसका कंसीडर करें, पीएस पावर सेट ऑफ एस, और उसके ऊपर दो ऑपरेशन हमने डिफाइन किया। एक ऑपरेशन था सिमेट्रिक डिफरेंस, इसको डेल्टा से डिनोट कर रहे हैं, और दूसरा ऑपरेशन इंटरसेक्शन का था। ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या था? एसिमेट्रिक डिफरेंस बी वेयर ए बी आर टू एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट, और यू मे से दैट ए बी आर द सबसेट ऑफ कैपिटल एस। सो एसिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ठीक, तो ये ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ये एबिलियन ग्रुप बनाता है। क्या आप बता सकते हैं, आपने चेक किया कि ये रिंग बना रहा है? बताइए तो। पीएस डेल्टा इंटरसेक्शन ये तीनों मिला के रिंग बना रहा है, ये आपने चेक किया क्या? नहीं चेक किया? यू शुड वेरीफाई। So today is 11/08/07 and what we have to do to verify that this PS delta intersection is a ring. You need to verify first that this PS delta is abelian group. This is abelian group. तो आपको क्या वेरीफाई करना है? एसोसिएटिविटी वेरीफाई करना है आपको। एसोसिएटिविटी के बाद आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, ये वेरीफाई करना है, और इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ये वेरीफाई करना है। ठीक है, एसोसिएटिविटी वेरीफाई करने के लिए आप लोग वेन डायग्राम का हेल्प ले सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं। सो टेक ABC3 एलिमेंट्स इन PS, और आपको क्या करना है? A डेल्टा B सिमेट्रिक डिफरेंस C इज इक्वल टू A B C। इसको वेरीफाई करने के लिए आप वेन डायग्राम बना लीजिए, और उससे अगर शेडेड पोर्शन इक्वल आ रहा है देन इट इज ओके। दूसरा चीज आपको देखना है आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आप क्या इसमें बता सकते हैं कौन सा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा? एलिमेंट कौन सा ऐसा एलिमेंट है, इस आइडेंटिटी एलिमेंट को अगर हम E से डिनोट करें तो कौन सा ऐसा सबसेट है E जिसको हम किसी भी सेट A के साथ सिमेट्रिक डिफरेंस लें तो A आ जाए, चाहे राइट साइड से चाहे लेफ्ट साइड से। क्या आप गेस कर सकते हैं विच सबसेट E विल वर्क? सो यू मे सी दैट कि E में से A को हटाएं और फिर यूनियन ले लें, A में से E को हटाएं तो फाइनली A मिल जाए। तो ऐसा कौन सा E हो सकता है जो वर्क करेगा? कौन सा ऐसा सबसेट E होगा कि E में से A को हटाएं और फिर A में से E को हटाएं, ये A माइनस E है और ये E माइनस A है, और फाइनली मिल जाना चाहिए क्या? A मिल जाना चाहिए। सो कैन यू टेल मी थ्रू दिस फिगर यू कैन सी फाई हो सकता है। सो यस, सो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? E इज इक्वल टू फाई। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला सेट आप यहाँ से देख सकते हैं कि फाई होगा, तो E जो है फाई होगा। सो दिस फाई विल वर्क एज आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, तो इसको हम रीराइट कर लेते हैं यहाँ पे। लेट मी रिमूव इट एंड रीराइट इट। ठीक है, तो फाई अगर हम रख देंगे देन A माइनस फाई विल बी A एंड फाई माइनस A विल बी फाई, और दोनों का यूनियन A आ जाएगा। सो A डेल्टा फाई is equal to phi delta A is equal to A. So this will work. Now the third condition is that inverse, existence of inverse. So take some subset A in power set of S, and you have to find a B so that
A डेल्टा B इज इक्वल टू B डेल्टा A इज इक्वल टू 5 आ जाए, ऐसा हमको B चाहिए। सो कैन यू टेल मी विच B विल वर्क? ऐसा कौन सा B होगा कि A माइनस B और B माइनस A का यूनियन करने पर A माइनस B मतलब ये हिस्सा और B माइनस A मतलब ये हिस्सा, दोनों का यूनियन करने पे 5 आ जाए। तो कैन यू टेल मी विच B विल वर्क? कौन सा ऐसा सबसेट B हम चूज कर सकते हैं? बोलिए तो, जल्दी बोलिए। आप लोगों ने ट्राई नहीं किया लग रहा है इस क्वेश्चन को। यस प्लीज टेल मी, क्या कोई ऐसा सेट B मिल सकता है कि एसिमेट्रिक डिफरेंस B करने पर 5 आ जाए? गिव मी योर रिस्पॉन्स। सर ए। सर हाँ, और बताइए, और क्या बता रहे थे? यस प्लीज टेल मी एनीथिंग एल्स। ए के अलावा कुछ कहना चाह रहे थे तो बताइए। ऑफ कोर्स asymmetric difference A will be 5. So A will work as inverse of A. इसको बोल सकते हैं सेल्फ इनवर्स। सो A का एडिटिव इनवर्स A है। तो अगर देखिए, ये जो पहला ऑपरेशन है इसको यूजुअली हम लोग क्या कहते हैं, ये एडिशन का ऑपरेशन है, और जो दूसरा ऑपरेशन है उसको हम लोग नाम देते हैं मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन। तो अगर इस रिंग के अंदर हम बोलें कि व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ ए का मतलब होगा माइनस ए। सो माइनस ए इज ए। इस रिंग के अंदर माइनस ए क्या है, वो ए है। ठीक है, इस रिंग के अंदर एडिशन का ऑपरेशन क्या है, एडिशन का ऑपरेशन जो है वो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और इस रिंग के अंदर ए इंटू ए का मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन ए, या ए इंटू बी का मतलब है ए इंटरसेक्शन बी। तो दो ऑपरेशन है, पहला ऑपरेशन जो रिंग का है उसको एडिशन का ऑपरेशन, और जो दूसरा ऑपरेशन है उसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन यूजुअली बोलते हैं। So you may check now. So we have checked actually that this ring PS delta this, sorry, we have checked that this is a group. और एबिलियन होगा कि नहीं, आप देखिए A डेल्टा B का वेन डायग्राम और B डेल्टा A का वेन डायग्राम सेम आएगा। So this implies that दिस इज एबिलियन ग्रुप। ठीक ना, दोनों का वेन डायग्राम क्या होता है, सेम ही आएगा। सो दिस इज एन एबिलियन ग्रुप, दिस इज एन एबिलियन ग्रुप। और अब हमको क्या चेक करना है, हमको चेक करना है मल्टीप्लिकेशन का हिस्सा चेक करना है, मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव है या नहीं। सेकंड पॉइंट जो है हमारे पास वो है मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव है या नहीं। सो सपोज करिए हमने ए बी सी 3 एलिमेंट ले लिया इसका, और हमको देखना है ए इंटू बी इंटू सी बराबर है क्या ए इंटू बी इंटू सी के। लेकिन इंटू का मतलब क्या है हमारे लिए, हमारे लिए इंटू का मतलब है इंटरसेक्शन से। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसको वेरीफाई करने का मतलब हमको वेरीफाई करना है क्या ये दोनों चीज बराबर है। तो आप जानते हैं ये दोनों बराबर होता है, और इसका अगर प्रूफ करने को बोलें तो आप वेन डायग्राम बना के दिखा सकते हैं कि दोनों सेट बराबर है। ठीक है ना, सो एसोसिएटिविटी हो जाएगी। और उसके बाद क्या आपको दिखाना है, डिस्ट्रीब्यूटिव दिखाना है। डिस्ट्रीब्यूटिव भी आप वेन डायग्राम से दिखा सकते हैं, यानी हमको दिखाना है ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये हमको दिखाना है। ये दिखाने का मतलब इस रिंग के अंदर ए इंटरसेक्शन बी डेल्टा सी को हमको दिखाना है ए डेल्टा बी और डेल्टा, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी डेल्टा
intersection C. So this is what we want to show. तो आप इसको भी आप वेन डायग्राम से लेफ्ट हैंड साइड बनाइए वेन डायग्राम में और राइट हैंड साइड बनाइए, दोनों का शेडेड पार्ट इक्वल आएगा. सो यू मे से दैट दिस विल होल्ड. एंड सिमिलरली यू कैन शो द अदर डिस्ट्रीब्यूटिविटी, that is a plus b dot c is equal to a dot c plus b dot c. So in this way, if you will verify all these things, you will get that this ps delta and this is a ring. ये एक रिंग है. समझ में आ रहा है? If you have any confusion, you may ask. लेकिन अगर हम आपसे पूछें क्या ये रिंग एबेलियन है, इज इट एबेलियन रिंग, इज दिस कॉम्यूटेटिव रिंग और एबेलियन रिंग, तो क्या बताओगे? बताओ. ये रिंग कॉम्यूटेटिव है. हाँ Yes, sir. क्यों? क्योंकि ए डॉट बी का मतलब क्या है? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, और इसको बी इंटरसेक्शन ए लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये बी डॉट ए हो गया. सो इट इज एन एबेलियन रिंग. अच्छा ये बताओ, ये एबेलियन होने के साथ साथ क्या इसमें कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या यूनिटी है इसमें? यूनिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्या कोई ऐसा एलिमेंट है कि अगर हम ए इंटरसेक्शन बी लें तो ए आ जाए फॉर ऑल ए? ऐसा कोई बी हो सकता है? ए सर. लेकिन हर एक के लिए आना चाहिए. नो सर. नहीं. अच्छा बताओ, ए किसका सबसेट है? ये जो सारे ए हैं वो किसका सबसेट है? पीएस क्या है? पीएस पावर सेट है सर एस का. एस का पावर सेट में एस के सबसेट्स आएंगे ना, तो अगर एस के साथ इंटरसेक्शन यस लिंक कर देंगे तो यस सर यस होगा. आ जाएगा ना. सो एक्चुअली Yes. दिस इज ए रिंग विथ यूनिटी. ये जो पीएस है वो रिंग विथ यूनिटी है ना. सो पीएस इज ए, दिस इज अ कॉम्यूटेटिव रिंग विथ आइडेंटिटी. कॉम्यूटेटिव रिंग विथ आइडेंटिटी. और आइडेंटिटी कौन है इसमें? एस है. एस विल वर्क एज द आइडेंटिटी एलिमेंट. एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी 5 है. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? कैपिटल एस है. समझ में आ रहा है डिफरेंस? इज इट ओके? देखो इस रिंग में एक और खास बात है. नाउ इन पीएस, इन दिस रिंग पीएस, अगर हम एक एलिमेंट ले लें इसमें, पीएस में एक एलिमेंट ले लें और उसका स्क्वायर निकालें, तो स्क्वायर निकालने का क्या मतलब है? मल्टीप्लाई करना. ठीक है, ए स्क्वायर लिखा तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई करना. सो ए इंटू ए. व्हाट इज ए इंटू ए? ए इंटरसेक्शन ए, और ए इंटरसेक्शन ए कितना आएगा? ए आएगा. एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल ए. हर ए के लिए ऐसा होगा. सो पीएस के अंदर किसी एलिमेंट का स्क्वायर करेंगे तो वही एलिमेंट आएगा. समझ में आ रहा है बात? यस सर. ऐसी रिंग को बोलते हैं बुलियन रिंग. तो लेट मी डिफाइन बुलियन रिंग. बुलियन रिंग, a ring R plus dot is called Boolean ring. Boolean ring if x square is equal to x for all x in R. So this ring PS delta, this is an example of Boolean ring.
ये क्या है, बुलियन रिंग का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। इज इट ओके? यस, आर वी कनेक्टेड और नॉट? Yes, sir. हाँ ठीक है, ये बात कोई कंफ्यूजन? बोलिए, इफ यू हैव एनीथिंग कंफ्यूजिंग देन प्लीज आस्क मी। कुछ भी ऐसा लग रहा हो कि कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं, और अगर सब समझ में आ रहा है तो बोल सकते हैं ठीक है। आगे चलें? यस सर। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम लोग एक रिंग डिफाइन करने जा रहे हैं C01। C01 व्हाट इज C01? f हमने लिया एक फंक्शन 0-1 से लेकर R में such that f is continuous, ठीक है। So this is the set of all continuous function from the interval 0-1 to R. C01 क्या एक सेट है जिसमें कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है 0-1 से R में। इस सेट के ऊपर हम लोग दो ऑपरेशन डिफाइन करते हैं, डिफाइन प्लस, एक प्लस का ऑपरेशन डिफाइन करते हैं। ऑपरेशन कहां से कहां तक होगा? C01 क्रॉस C01 टू C01 एस f प्लस जी। एफ जी क्या है? एफ जी बिलोंग्स टू C01। दो एलिमेंट हमने C01 में लिया, f प्लस जी हम डिफाइन कर रहे हैं। कैसे डिफाइन करेंगे? एक मैप होना चाहिए, इसको कहां से कहां होना चाहिए? 0-1 से R में। तो मैप डिफाइन करने का मतलब है मैप से एलिमेंट की इमेज बताना। तो ये एक मैप है और इससे किसी एलिमेंट x की इमेज हम बता रहे हैं। तो कैसे दिख रहे हैं? fx प्लस जी एक्स। fx कहाँ का एलिमेंट है? R का, एंड gx कहाँ का एलिमेंट है? R का, और दोनों को सम कर दिए तो वो भी एक रियल नंबर होगा। एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल x इन 0-1। x कहाँ वैल्यू करेगा? 0-1। तो 0-1 पे एक फंक्शन बन गया। और हमको पता है कि दो फंक्शन का जो सम हम डिफाइन करते हैं, ये क्या है? सम ऑफ फंक्शन है। दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का सम कॉन्टिन्यूअस आता है। ये आप लोगों ने अपने रियल एनालिसिस के कोर्स में पढ़ा होगा। तो हमने f और g दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन लिया, उसका सम डिफाइन किया, वो भी एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। डोमेन 0-1 x का ले रहे हैं, इसलिए ये फंक्शन 0-1 से है। और रेंज आप देख सकते हैं क्योंकि f और g की रेंज r है, इसलिए fx प्लस gx भी r का एलिमेंट होगा। सो इट सिंपली मीन्स दैट f प्लस g इज ए फंक्शन from 0-1 to R and it is also continuous, so f plus g is an element of C01। तो हमने दो फंक्शन f और g लिया तो उसका सम डिफाइन कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? इज इट ओके? कुछ बताइए आप लोग, हाँ ना कुछ तो बोलिए। अब हमको एक और ऑपरेशन चाहिए और वो ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन हमको डिफाइन करना है ना। तो हम लोग एक और ऑपरेशन डिफाइन करते हैं, डिफाइन डॉट, डिफाइन डॉट फ्रॉम C01 क्रॉस C01 टू C01 एस, कोई दो एलिमेंट हम ले लें fg इन C01 और इसी के ऊपर हम डॉट डिफाइन करेंगे f डॉट g। ये नया फंक्शन हम डिफाइन करना चाह रहे हैं x, ठीक है। तो कैसे डिफाइन करेंगे? हम लोग fx निकालेंगे और जो आएगा उसमें gx निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप देख सकते हैं fx कहाँ का एलिमेंट है? r का, और gx भी r का एलिमेंट है, तो fx इंटू gx भी r का एलिमेंट होगा। यानी f डॉट g फिर से एक फंक्शन हो गया 0-1 से r में, और हमको पता है प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस होता है, इसलिए f डॉट g भी C01 का एलिमेंट होगा। अब हमारे पास क्या हो गया? दो ऑपरेशन हो गया। अब हम आपके लिए एक्सरसाइज की तरह छोड़ रहे हैं, वेरीफाई दैट
verify that C01 with respect to these two operations, this is a ring. ये एक रिंग है, ठीक है। तो आपको क्या क्या वेरीफाई करना है? आपको सबसे पहले वेरीफाई करना है पॉइंट नंबर ए, C01 प्लस के रिस्पेक्ट में एबेलियन ग्रुप होगा, एबेलियन ग्रुप होगा, ठीक। चलिए हम इसमें हिंट करते जाते हैं आपको, आप अपने से करने की कोशिश कीजिएगा, डिटेल्ड प्रूफ लिखिएगा इसका। कैसे ये एबेलियन ग्रुप होगा? ये जो प्लस है इसमें एसोसिएटिविटी होगी। अगर हम तीन एलिमेंट ले लें, एफ जी एच ले लें C01 में, तो हम क्या कर सकते हैं, एफ प्लस जी प्लस एच को अगर हम कैलकुलेट करें तो ये क्या होना चाहिए, एक मैप होगा। तो मैप कैसे डिटरमाइन होता है? अपनी इमेज से डिटरमाइन होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं एफ प्लस जी अप्लाइड ऑन एक्स प्लस एच अप्लाइड ऑन एक्स, ऐसे हो गया डिफिनीशन से। और एफ प्लस जी की डिफिनीशन क्या कहेगी, ये एफ एक्स प्लस जी एक्स हो गया, और ये ब्रैकेट हो गया और प्लस एच एक्स हो गया। अब देखो एफ एक्स जी एक्स एच एक्स ये सारे कहाँ के एलिमेंट हैं? ये सारे एलिमेंट जो हैं वो रियल नंबर सेट के हैं, और रियल नंबर सेट में एडिशन के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिविटी होती है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस एच एक्स, और ये ब्रैकेट यहाँ पे लगा सकते हैं। आप समझ पा रहे हैं इस बात को? जहां पे कंफ्यूजन हो वहां पे पूछिएगा, छोटी छोटी चीज क्लियर करना जरूरी है। इस स्टेप को समझ पा रहे हैं? यस सर। ठीक, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एफ प्लस जी एक्स जी प्लस एच, ये एक मैप हो गया और इसके ऊपर हमने एक्स लगाया, ये दोनों एक ही चीज, ठीक। और क्योंकि ये बात पूरी फॉर ऑल एक्स के लिए सही हो रही है, इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि एज ए मैप एफ प्लस जी प्लस एच वो बराबर है एफ प्लस जी प्लस एच, एज ए मैप दोनों इक्वल है, ठीक। तो हम लोग ने क्या दिखा दिया, हम लोगों ने दिखा दिया कि ये जो ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव। अब एसोसिएटिव होने के बाद जो दूसरा पॉइंट बचता है वो क्या है, वो ये है कि क्या ये ग्रुप है, मतलब क्या इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट है। सो आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होगा? आइडेंटिटी एलिमेंट जो भी होगा वो एक ऐसी मैप होगा, मान लीजिए आइडेंटिटी एलिमेंट को हम ई से डिनोट करें, तो ये एक ऐसी मैप होगा कि एफ प्लस ई करने पर एफ आ जाए। इसका मतलब इसमें अगर हम एक्स अप्लाई करें तो एफ एक्स आ जाए। इसका मतलब ये हो गया कि एफ एक्स प्लस ई एक्स करने पर एफ एक्स आ जाए फॉर ऑल एक्स, समझे। और एफ एक्स क्या रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, तो कौन सा रियल नंबर जोड़ने पर सेम रियल नंबर रह जाएगा, बता सकते हैं? ई एक्स क्या होना चाहिए, यहाँ से ई एक्स को 0 आना चाहिए फॉर ऑल एक्स। तो ई एक्स जो मैप होगी वो कैसी मैप होगी, इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो यूजुअली इसको हम लोग जीरो मैप से डिनोट कर देते हैं और इसको 0 ही लिख देते हैं, इसको बोलते हैं जीरो मैप। जीरो मैप का क्या मतलब है? जीरो मैप का मतलब है जीरो ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स इन आर। एक्स क्या है, रियल नंबर, ठीक है। ये जो 0 है वो मैप है, कॉन्टिन्यूअस मैप है, कहां से कहां तक, 0 1 से लेकर आर तक। और ये जो 0 है वो नंबर है, रियल नंबर 0। डिफरेंस समझ रहे हैं? सो दिस 0, ये जो बड़ा वाला 0 लिखा है, ये एक जीरो मैप है और यही आइडेंटिटी का काम करेगा। डू यू अंडरस्टैंड और नॉट, और यू हैव एनी कंफ्यूजन? बोलिए, जल्दी बोलिए। कोई ऐसी चीज जो समझ में नहीं आ रही हो आप पूछ सकते हैं, फिर से पूछ सकते हैं।
यस और नो, प्लीज टेल मी। अगर कुछ ऐसा जो आप नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर से पूछ लीजिए। Yes, please. Okay, let me complete it and then I will ask you again. Additive inverse. अब additive inverse क्या होगा? एक मैप हम ले लें f in C01 और एक ऐसी मैप चाहिए कि इसको जोड़ने पर इसके साथ आइडेंटिटी आ जाए। f प्लस एक मैप मान लीजिए दूसरी g ऐसी है कि इसको जोड़ने पर हमको आइडेंटिटी यानी जीरो मैप मिल जाए। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? जीरो है। इसका मतलब fx प्लस gx करें तो जीरो आ जाए। इसका मतलब gx क्या होना चाहिए? माइनस ऑफ fx होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा रफ कैलकुलेशन हुआ। हमारा जो gx मैप क्या है वो माइनस ऑफ f मैप। सो टेक f इन C01 then define minus f from 01 to r as minus f of x is equal to माइनस f तो मैप है जो x के ऊपर लग रही है, इसकी वैल्यू क्या है? माइनस ऑफ fx। ये जो मैप है दिस विल वर्क एज आइडेंटिटी एलिमेंट। सो माइनस f इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ f। ये जो है f का आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ सॉरी इज इनवर्स एलिमेंट ऑफ f। ये f का इनवर्स, सिर्फ इनवर्स भी लिख सकते हैं, इज इनवर्स ऑफ। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया? C01 और आप देख सकते हैं कि एडिशन कॉम्पिटिटिव होगा क्योंकि रियल नंबर्स का एडिशन कॉम्पिटिटिव होता है। दिस प्लस इज कॉम्पिटिटिव, दिस इज कॉम्पिटिटिव, ये कॉम्पिटिटिव। ठीक है, इसके बाद क्या बचता है? इसके बाद हमको वेरीफाई करना है associativity of multiplication. I am leaving it as an exercise for you to verify that multiplication का जो ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव है and dot is distributive over plus, ये डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, so if you will verify these two things then we may say that this with respect to addition and multiplication this is a ring. Now the question again arises, is C01 commutative ring? क्या ये commutative है? Is C01 has this is a ring with identity? क्या ये रिंग विथ आइडेंटिटी है? तो ये दोनों क्वेश्चन अभी भी हैं, तो आप लोग सोचेंगे इसको, बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग मच रिस्पॉन्स फ्रॉम यू।